Hello friends, today we are going to start new chapter number 12 as a thermodynamics. The present chapter thermodynamics also related with the temperature, and in thermodynamics we will construct some type of engine, some type of devices which also depends on the heat and temperature. Then if we consider, if we remember the word as a heat, then do you have any example? Okay, whatever the work done is converted into the heat. Is there any example? Okay, work done is converted into the heat. The simple example I can give. In winter season when we rub our palm, so in rubbing the palm, we are doing the work, and as a work, due to the frictional between the two palms, there is a conversion of the heat. That work is converted into the heat, and we can feel warm. है ना? In winter season when we are rubbing our hand, at that time, due to the friction exerted between the two surfaces, the work done is converted as a heat energy, and that heat go into our body and we can feel warm. Okay? फिर ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर के साथ आगे करें हम, then in modern physics, तो बिफोर मॉडर्न फिजिक्स जो हीट है उसको कैसे मानते थे? Then before modern physics, heat was believed as a invisible fluid which is filled inside of the pore in a substance. कि जो छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके अंदर ऐसा मानते थे कि द इनविजिबल फ्लूइड है और वो ऐसे छोटे छोटे हॉल्स के अंदर है. Whenever two bodies are come to the contact with different temperature, then the heat flow from higher temperature to the lower temperature. But in modern physics, तो ऐसे बोलते थे कि बिफोर जो ऐसे छोटे छोटे होल्स में उसको कैलोरिक भी बोलते थे. इट इज इनविजिबल फ्लूइड एज ए कैलोरिक. बट in modern physics we can say at present nowadays we can say the heat जो भी है it is due to the difference of temperature. और जो heat है उसको हम ऐसा मानते हैं कि heat nothing but the flow of energy. heat nothing but flow of energy है. तो flow of energy कब होगा? तो whenever the two substance are at different temperature coming into the contact, the flow of energy from higher temperature to the lower temperature, and that is called heat. Heat nothing but flow of energy, जो हायर से लोअर ऑलवेज ट्रांसफर होगा. अब हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स. इन प्रेजेंट चैप्टर वी विल यूज द वर्ड एज ए सिस्टम. Before this chapter, we will use the name as a particle or as a substance, but in present chapter, we will use the word as a system. Okay, system possess energy. The flow of energy from one system to another system. ऐसे from one body to another body की जगह पर बोलेंगे आप from one system to another system. तब अगर हम इसका डिफरेंस सोचें कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. इफ वी रिमेंबर मैकेनिक्स, मतलब जो भी हमने आगे के चैप्टर्स कर रखे हैं उसमें अगर हम इक्विलिब्रियम सोचें कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, तो इन मैकेनिक्स वी कैन से इक्विलिब्रियम मीन्स net force zero. Okay, whatever the force are exerted on the body, the net force is zero. Then we can say this body is in equilibrium. तो ऐसा बोल सकते हैं हम mechanically equilibrium. But in thermodynamics, अगर उसमें बोलेंगे हम equilibrium,
तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें बहुत सारी चीज कंसीडर करनी पड़े। फिर से इन मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, अदरवाइज नेट टॉर्क आल्सो जीरो। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क इज जीरो, देन वी कैन से बॉडी इज इन मैकेनिकली इक्विलिब्रियम। बट अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम करना है तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हमें अलग अलग इक्विलिब्रियम लेने पड़ेंगे। तो चलो अगर हम सोचे कि इक्विलिब्रियम तो है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, तो हमने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या यूज करना है, वर्ड एज ए सिस्टम। तो अगर हम कोई भी एक एज ए क्लोज सिस्टम ले लें तो आउटर पोर्शन ऑफ द सिस्टम कंसिडर्ड एज ए सराउंडिंग। जस्ट कंसिडर आवर रूम। इफ वी कंसिडर द रूम एज ए सिस्टम, देन आउटर पोर्शन ऑफ द रूम which is in directly contact with the room, it's called surrounding। तो जो आउटर पोर्शन है, जो हमारी ऐसे रूम है उसकी वॉल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए सराउंडिंग। ओके, तो अब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले हमें करना है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो what is called thermal equilibrium? So whenever the two systems, two bodies are in contact with each other, we can say there is a flow of heat from one body to another body, from one system to another system, till temperature becomes equal। कब तक हीट फ्लो होगी? ऐसे फ्लो होती रहेगी? नहीं। कब तक होगी? तो कि जो हायर टेम्परेचर है वो उसका कम होता जाएगा, लोअर है उसका इंक्रीज होगा। whenever the temperature becomes same, then flow of heat also stop। तो whenever flow of heat stop, we can say the both system attain the same temperature, it is called thermal equilibrium। तो whenever two body are at different temperature placed in contact with each other, then heat flow from higher to lower till temperature becomes equal, it's called thermal equilibrium। Then second, mechanical equilibrium। then what is called mechanical equilibrium? तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे हम कि नो इम्बैलेंस फोर्स एक्सर्टेड। अब नो इम्बैलेंस फोर्स मींस बैलेंस फोर्स बोल सकते हैं। नो इम्बैलेंस फोर्स, नो इम्बैलेंस मतलब वी कैन से बैलेंस फोर्स। तो whenever balance force exerted on the system, it is called mechanical equilibrium। and third, chemical equilibrium। then what is the meaning of chemical equilibrium? So there is a no chemical reaction takes place in a system whenever two different type of gases या different type of liquid, whatever it is, fill inside of the system, most probably हम गैस ही बोलेंगे इसमें। तो whenever two different type of gas fill inside of the system, there is no chemical reaction takes place। तो जब भी ऐसे chemical reaction नहीं होगा उसको हम बोलेंगे chemical equilibrium। मतलब हमें ऐसे गैस फिल करने हैं कि जो अंदर उसमें कोई chemical reaction नहीं होना चाहिए। ड्यू टू दैट ऐसा कोई भी ऐसे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस भी नहीं कि जिसमें रिलीज हो कि हीट एब्सॉर्ब हो, नहीं। दोनों अलग अलग गैस है जिसके बीच में ऐसे केमिकल प्रोसेस ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। देन इट इज कॉल्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल दिया कि टेम्परेचर से, मैकेनिकल में बोल दिया इट इज इन बैलेंस फोर्स एक्सर्टेड, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में बोला कि नो केमिकल प्रोसेस occurs between two gas field into the system, that is its chemical equilibrium. So whenever the system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium, then it is called in thermodynamics equilibrium. Whenever the system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium, then the system is called is in thermodynamic equilibrium. अब हमने बोला कि जो भी ऐसे मैकेनिक्स है और थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस, तो मैकेनिक्स में अगर हम सोचेंगे कि कोई भी फोर्स लग रहा है, कोई भी टॉर्क लग रहा है और उससे वो जो बॉडी है वो मोशन में आएगी, आइदर इन लीनियर और रोटेशनल मोशन, है ना, कि ड्यू टू द external force exerted on the body comes in motion, या external torque exerted on the body and body performs the rotational motion. तो जो भी मोशन है उसका जो भी रिस्पॉन्सिबल पार्ट है वो फोर्स है या फिर टॉर्क है, लेकिन इन थर्मोडायनेमिक्स उसको एक्सटर्नल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम कोई भी ऐसे मोशन से जा रही है, आउटर मोशन, तो आउटर उसकी कितनी भी मोशन हो या कितना भी एक्सेलरेशन हो, डजंट मैटर। इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी मैटर्स। एक्सटर्नल फोर्स है द सिस्टम मूविंग विद हाउ मच वेलोसिटी या हाउ मच एक्सेलरेशन, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें इंटरनल एनर्जी से मतलब है, and this internal energy it is due to the temperature से ही होगा। whatever the heat supply, जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो अगर सिस्टम स्टेडी है तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और अगर वो मोशन में है पूरा, then also whenever we supply the heat the same amount of internal energy changes। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें इंटरनल एनर्जी मतलब जो भी सिस्टम के अंदर गैस भरा हुआ है उसके एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मेन पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इन मैकेनिक्स पूरी बॉडी कितने मोशन से जा रही है वो हमारे लिए मैटर करता है, कि चलो ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा या इसको ड्रॉप कर दो तो कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है, कितना डिस्टेंस कर रहा है, वो हमारे लिए मैटर करता है। बट इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सटर्नल पार्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें उसके इंटरनल पार्ट में जाना है, इंटरनल एनर्जी में जाना है ना। जैसे अब इसको हम तुम्हारे साथ लिंक करें, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर लिंक हम कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ से हम बोले कि भाई चलो तुम्हें पढ़ाई करनी है, हाँ तुम्हें इतनी चीज़ें सीखनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे लिखना है, तब पेरेंट्स भी बोलेंगे कि चलो बेटा इतना तुम पढ़ाई करो, अभी तुम्हारे लिए टाइम है, इतना टाइम है, ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई का बेस्ट टाइम है, फिर चांस नहीं मिलेगा, ऐसे जो भी बोलते हैं हम बोलेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे, फिर पेरेंट्स बोलेंगे, है ना, जो भी ऐसे तुम्हारे से बड़े जो भी होंगे वो सभी बोलेंगे कि भाई चलो ऐसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। लेकिन जब तक तुम्हें अंदर से इंटरनली जब ऐसे कुछ थॉट नहीं होगा तब तक तुम तो कुछ करोगे ही नहीं। जब ऐसे अंदर से पता चलेगा कि हाँ अब हमें कुछ पढ़ाई करनी है या कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और तब तुम तुम्हारा वर्क स्टार्ट करोगे, है ना। तो अंदर से जब तक कुछ नहीं होगा तब तक एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने भी काम करें वो तुम्हारे लिए सब यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन तुम जब ठान लोगे कि ना मुझे कैरियर अपनी
बनानी है, कुछ मुझे अपना नाम करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है हमें, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और तब तुम अपनी पढ़ाई चालू करोगे। तो वो इंटरनल फैक्टर काम करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई काम नहीं है, वो पूरा इंटरनल फैक्टर से काम करता है कि तुम हीट फ्लो करो, हीट सप्लाई करो, देन हाउ मच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस। हीट एज ए वहां से बाहर निकलेगी, देन हाउ द इंटरनल एनर्जी चेंजेस, वो उसके ऊपर काम करेगा। पूरा इंटरनल मैटर है ये। ओके, अब यहां पर जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कर दी है, अब ऐसे ही एक हमें यहां पर एक लॉ देना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलेंगे कि सबसे पहले हमें दो वर्ड क्लियर करने हैं, एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक। तो एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक। तो एडियाबैटिक मतलब वन टाइप ऑफ इंसुलेटर। अगर हम बोल दें एडियाबैटिक वॉल, मैं ऐसा बोल दूं कि एडियाबैटिक वॉल है, तो कोई भी ऐसे सिस्टम, दो सिस्टम के जिसके बीच में एडियाबैटिक वॉल है, देन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एडियाबैटिक मतलब वन टाइप ऑफ इंसुलेटर। एंड डायथर्मिक, डायथर्मिक मतलब हम बोल सकते हैं कंडक्टर। डायथर्मिक वॉल बोल दूं, then it is conducting wall। तो conducting wall मतलब through this wall there is a heat transfer is possible। तो अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि चलो हमारे पास ऐसी कोई भी दो सिस्टम है, सिस्टम A and B, both are at different temperature, but the wall between them is adiabatic wall। Adiabatic wall, the wall between A and B is adiabatic wall। मतलब due to the temperature difference, even though there is a temperature difference, no exchange of heat takes place between A and B, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अब अगर इसको मैं कोई भी एक कांटेक्ट में कर दूं C के साथ, सिस्टम C, एंड द वॉल बिटवीन A and C and B and C is डायथर्मिक, मतलब कंडक्टिंग वॉल, देन देयर इज an exchange of heat between A and C as well as between B and C। तो अगर ऐसा कुछ अपने सिस्टम रखा है तो क्या होगा, A और C थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन A and C। क्या होगा, तो कब तक हीट ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फिर देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन C and B आल्सो, तो इट्स अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब A attain the equilibrium with C and B is also attain the equilibrium with C after the process over। मतलब after the equilibrium of A with C and B with C, if we change the nature of the wall, मतलब अब क्या होगा कि इसको हम कंडक्टिंग बना दें और इसको एडियाबैटिक बना दें, मतलब कुछ ऐसा कर दिया सेकंड पार्ट में। It is adiabatic and it is डायथर्मिक। कब, लेकिन इनिशियल नहीं, फिर से कि here there is a temperature difference between system A and B,
but due to the adiabatic wall there is no exchange of heat occurs between A and B. But due to the dithermic wall between AC and BC, A attained the thermal equilibrium with C, B is also attained the thermal equilibrium with C. After the attained the thermal equilibrium with C, just change the nature of the wall. So by changing the nature of the wall, there is no exchange of heat between A and B. पहले प्रोसेस पॉसिबल थी, लेकिन जब A C के साथ इक्विलिब्रियम करेगा, B C के साथ इक्विलिब्रियम करे, उसके बाद अगर हम इसको डायथर्मिक बना दें तो A और B के बीच में वो एज ए हीट ट्रांसफर नहीं होगी. मतलब A एंड B इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. कब हीट ट्रांसफर नहीं होगी? तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो, और अगर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट कभी ट्रांसफर नहीं होगी. एंड दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ द सिस्टम A is in thermal equilibrium with system C, the B is also thermal equilibrium with C, then A and B is in thermal equilibrium with each other. Otherwise ऐसा बोल सकते हैं कि if two systems are in thermal equilibrium with third system, then these two systems is in thermal equilibrium with each other. जिसको हम इक्वेशन से करें तो A and C and B and C दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है. मतलब क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं? The TA is equal to TC as well as TB is equal to TC also. तो इस इक्वेशन से क्या होगा? राइट हैंड साइड सेम है, then what we can say? TA is equal to TB. So whenever two systems are in thermal equilibrium with third system, then two systems are in thermal equilibrium with each other. तो ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में हो जाए, उसके बाद अगर तुम इसकी वॉल चेंज करो, then also there is no exchange of heat because they are in equilibrium with each other, and this is the zeroth law of thermodynamics. अब ये प्रोसेस में तुम वन बाय वन करो. मतलब पहले A को अलाउ करो C इक्विलिब्रियम के लिए, और फिर उसके बाद B को अलाउ करो C के इक्विलिब्रियम में, और दोनों को साइमल्टेनियसली अलाउ करो. दोनों में हमें इक्विलिब्रियम स्टेट सेम ही मिलेगा. वन बाय वन अलाउ करो या दोनों को साथ में, वी कैन गेट द सेम इक्विलिब्रियम स्टेट. दोनों में हमें सेम ही टेम्परेचर मिलेगा. तो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? देन फ्रॉम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स we can get the important quantity temperature. इससे हमें टेम्परेचर मिलेगा. The important quantity is a temperature. और वो टेम्परेचर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि how the heat flow whenever two body are in contact with each other at different temperature, then surely we can say the heat flow from high temperature to the lower temperature till temperature becomes same. है ना? तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पहले से हमारे पास है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी नो द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बस आज हमने ये प्रॉपर पढ़ा है. बाकी तो हमें पता ही है कि जैसे हाई टेम्परेचर है वो हीट लॉस करेगा, और जो लोअर टेम्परेचर वाला है वो हीट गेन करेगा. दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, उसके बाद हीट फ्लो तो होगी नहीं. हाँ, तो वो तो हमें पता ऑलरेडी. एंड दिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन पहले हमें लॉ पता नहीं था, एप्लीकेशन पता था. उसी एप्लीकेशन से हमने ये लॉ पढ़ लिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हिच गिव्स द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एज ए टेम्परेचर. है ना? तो यहां तक पहले करो. इतना जो है इनिशियल जो हमने किया, दिस ऑल ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये लो हमें करना है एज ए इम्पोर्टेंट है. थियरी में पूछते हैं कि राइट डाउन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन ऑल्सो. राइट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ऐसे दो अलग अलग डायग्राम से तुम्हें पूरा उसको एक्सप्लेन कर देना है वर्डिंग में. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहां से आगे बढ़ेंगे.
और उसका हमें फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी करना है, और ये थर्मोडायनेमिक्स के बेस के ऊपर हमें बहुत सारे इंजन भी कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो हमारा मेन पार्ट थर्मोडायनेमिक्स में कि हाउ इंजन वर्क्स। क्लियर?